हल्ले बर्तन दे जाएंगे। हल्ले बर्तन दे जाएंगे। हल्ले बर्तन दे जाएंगे। हल्ले बर्तन दे जाएंगे। This time, in a very short span of time, we have already seen 2 babies in the less than 1 month old who become severely ill and got into required ICU care, into ventilator, and successfully, by God's grace, we have saved both the babies. Sir, if we just talk about this current second wave, do you feel that we need to more careful about the newborn babies, children's? The state it's the health department also WC department to take care of the babies, children's or pregnant women's in terms of this infection. Right. As the second wave is raising, we are seeing more and more pediatric age group children becoming positive and becoming symptomatic also. So we have to be more careful. We have to foresee things and take the nearest doctor's advice, pediatrician's advice, or healthcare system's advice, and treat accordingly as per the guidelines. In mild to and moderate cases, usually they come out, but in severe cases, they would require hospitalization and care urgent when needed. Yes, sir. So if you see now when children are getting more and more affected as compared to previous wave, that is because of few things, like the children are developing it because many people are getting vaccinated also. So the children, as the vaccine is not yet recommended for the children or the pediatric age group, they are left vulnerable. So naturally they are getting more affected. So what we can do to prevent this kind of situation? So the 4 golden rules that everyone knows, but I would reiterate it again, that universal masking, maintaining social distance, and universal hand washing is very important. And the 4th one, which is most important, is to vaccinate all eligible adults in the family as per government guidelines. So because when the adults are protected, the children will naturally get protected, because children normally as such they don't go outside normally. It's the adults who go outside and transmit the infection to the children. So if adults are protected with vaccination and other things, so naturally children will also get protected. हाँ सर, ये जो 25 दिन का नया न्यूबॉर्न बेबी था आपके यहाँ एडमिट हुआ था पॉजिटिव होने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया है, किस तरह से आप उसको देखते हैं और थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। ये जो 25 दिन का बेबी हमारे पास आया था, तो बेबी रायपुर छत्तीसगढ़ में बॉर्न हुआ था बाय सीजेरियन सेक्शन। देन उनका घर था भवानीपटना, जो कि तकरीबन यहाँ से भुवनेश्वर से 500 किलोमीटर दूर है। तो वो घर आने के बाद फैमिली में फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बुखार और कोविड जैसा सिम्टम्स होने लगा। तो जब उन्होंने टेस्ट करवाया, सब एडल्ट मेंबर का RT-PCR पॉजिटिव आया। उसके बाद बेबी को भी जब 15 दिन हुआ था, उसको भी बुखार और ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा तकलीफ हुआ, फिर सांस का तकलीफ बढ़ने लगा। तो हमारे पास 25 दिन जब हुआ था बेबी आया, जब उसका सांस का तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इमिडिएटली हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर में रखा और जो जो दवाई सब रिकमेंडेड है उसको दिया। हमने रेमडेसिविर भी यूज़ किया। रेमडेसिविर आप जैसे जानते हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रिकमेंडेशन कुछ है नहीं, स्टडीज़ भी नहीं है, डाटा भी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये लाइफ डेथ का सवाल था, तो
पेरेंट्स का कंसेंट और अंडरटेकिंग लेके हमने इसको लाइफ सेविंग दवाई के हिसाब से यूज़ किया और बेबी 10 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद बाहर आया और ब्रेस्ट फीडिंग लिया और अच्छा होके 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अच्छा से डिस्चार्ज होके घर गया। आप लोगों ने कब उसका टेस्ट कराया और कब फिर से जो है वो कितने दिन के बाद वापस उसका टेस्ट कराया जब वो नेगेटिव बेबी हमारे पास जब 25 दिन में आया इमीडिएटली एज पर प्रोटोकॉल हमने उसका RT-PCR टेस्ट किया जो पॉजिटिव आया था। फिर 12 दिन के बाद उसका वापस रीटेस्ट किया जो RT-PCR नेगेटिव था। तो अभी इस तरह के केसेस बच्चों के बहुत ज़्यादा फर्स्ट वेव में नहीं देखने को मिले थे, जैसे सुना भी नहीं था। अभी इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से आप एज एन एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, किस तरह से देखते हैं? अभी इस सेकेंड वेव में हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और बच्चे ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं जो कि फर्स्ट वेव में नहीं था। इसका कई सारे कारण भी हो सकता है क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है। दूसरे है कि जब एडल्ट लोग को वैक्सीनेशन में प्रोटेक्ट हो जाता है और वैक्सीन बच्चों के लिए रिकमेंडेशन अभी तक कुछ आया नहीं, स्टडीज़ भी नहीं हुआ, ट्रायल भी नहीं हो पाया है अभी तक, तो बच्चे थोड़ा वल्नरेबल रहते हैं। तो एडल्ट्स को जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है वो बच्चों को भी ट्रांसमिट हो जाता है बिकॉज उनका भी वैक्सीनेशन अभी तक कुछ आया नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।